जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, वेलकम टू आवर टुडेज वर्कशॉप सीरीज ऑन how to kick start of a startup for applied researchers in Pakistan. And I'm Salman A. Sheikh, and today's workshop number 2. And we will cover the economy of Pakistan in this workshop and the opportunities over here. So we can, if someone like want to initiate, so he can probably get some chance to get some ideas, business opportunities over here. So those people who want, like, they can utilize it or exploit those resources, obviously for indigenous resources and for our domestic industrial production increment. So let's move on. Economy of Pakistan. As we know that we have a population of like 220 million people. That's huge population. And our GDP, gross domestic product, nominal, it's about 285 billion dollar. It was more like in Nawaz Sharif government in 2018 due to dollar increment or appreciation. It is actually, our economy has been deteriorated, so it's like 285 billion dollars US dollar. And with respect to our GDP, with respect to uh, PPP, it's about 1200 billion dollar, 1200 billion dollar or 1.2 trillion dollar. So that's a huge market. The difference between nominal and PPP is like it's like a market size with respect in US dollars. So if we convert those dollars or produce in our local currency in Pak rupees, so in simple, for common man or layman term, it's like we have produced goods and services around 1.2 trillion dollar in 2019. So that's a real figure. It's such a huge market. So GDP per capita nominal, it's around 100 and 1,388 US dollar. It's nominal, and GDP per capita, it's about for PPP, it's about 5,872 US dollar. So we are far behind than Bangladesh as well, because they are no more. They have increased their export and did like a lot of macro and microeconomics reforms in their own country. Well, the most important thing that I would like all the people, the particular research community, to understand the dynamics is that our import is around, 52.5 billion dollar in 2019. So you can get exact data from some official website like Federal Bureau of Statistics or some other site like CIA Factbook. And our exports are like 24.2 billion dollar, and our remittances are 23 billion dollar. So that is the overview of our economy. So we have, but exactly I meant to say over here, like, like हमारी import बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारी import, like जनरली टर्म यूज़ की जाती है कि हम $2 बाहर भेजते हैं और $1 हम अर्न करते हैं, like by selling our exports. So there is a huge gap with respect to import substitution in Pakistan. तो हम आगे जाके भी आपसे डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, कुछ चीज़ें, कुछ का मुझे आइडिया, तो आई विल जस्ट गिव यू सम ओवरव्यू, तो सो यू कैन टैप दोज अपॉर्चुनिटीज एज वेल बीइंग अ अप्लाइड रिसर्चर. अच्छा जी, अगली बात पे आते हैं, लाइक रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएटेड होगी तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल में, अबाउट 40%. और उसकी ये करेंसी डेप्रिसिएशन बहुत बड़ी वजह है इंस्टेबिलिटी को, इन्फ्लेशन की. मोर मनी सप्लाई पेपर करेंसी की थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और मेजर चंक ऑफ टैक्सेस गो फॉर रीपेमेंट्स. लाइक वट एवर वी अर्न, लाइक हमारा जो टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट मशीनरी में, फौज को चलाने में, और लाइक ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नमेंट मशीनरी को चलाने में,
वो सारे का सारा, और बाकी वो मेजर चंक जो बचता है, बहुत ज़्यादा चंक, वो ज़्यादा रीपेमेंट्स में चला जाता है। डोमेस्टिक जो स्टेट बैंक ने अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, हमारा फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए स्टेट बैंक से लोन लिया होता है, उसमें चला जाता है, रीपेमेंट्स में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके जो मेजरेबल किस्म के साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो या आफ्टर इफेक्ट्स जो आते हैं, आफ्टर मैथ्स कहना चाहिए बल्कि, वो ये आते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटेड हो जाती है, फॉरेन पॉलिसी जो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर, लेट्स से आईएमएफ के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, लाइक यू नो, बॉर्बर की कोई इज्जत नहीं है, बैगर्स की कोई इज्जत नहीं है। तो हम लाइक वी शुड बी लाइक सेल्फ रिलायंट, लाइक, और उसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो इम्पोर्ट्स हैं। और इम्पोर्ट मतलब कि या तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप थोड़ा सा कम हो तो लाइक इट मेक सेंस, लाइक ऑब्वियसली फ्री ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन लाइक इस सिचुएशन में भी बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, हम लोग तो ना इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, लाइक हम लोग कुछ भी जो है ना मेजर रॉ मटेरियल तक, लाइक स्टील एंड ऑयल और हम लोग ले लें, और हम लोग उसका रॉ मटेरियल तक हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करें, इवन दो वी हैव, हमारी लोग आने चाहिए इसके अंदर कि हम अपना लोकल आयरन और भी इसको यूटिलाइज करें या एक्सप्लॉइट करें फॉर अवर ओन स्टील मिल। उसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट डेवलप होता है वो होता है जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एक तो जनरल सिक्योरिटी है, फौज को साइडों से बॉर्डर को सिक्योर करना है, लेकिन जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो उससे भी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए, तो उसमें रिसर्च कम्युनिटी का भी पार्ट है, हमें हर वक्त अब्यूज़ नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमें अपना काम कम अज़ कम करना चाहिए, कम अज़ कम यू नो लाइक एकेडमिक लेवल के ऊपर जो आपकी है पोजीशन उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो चलें आगे फर्दर इसको और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है ना जी, ये टोटल एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर जो है इसका बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान जो जनरली चलती हैं, लाइक इसमें राइस है, व्हीट मिलिंग है, गुड़ जो होता है जड़ है, शुगर मेकिंग है, ऑयल क्रशिंग है, कॉटन गिनिंग है, होजरी है, पोल्ट्री है, फिश प्रोसेसिंग है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी फार्म्स अब तो आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अब देखें डेयरी फार्म्स में देखें तो हमने अपनी लोकल जो इंडिजिनस हमारी साहिवाल नस्ल की वो जो बफलोज हैं, हमने उनको साइडलाइन करके, या उनकी जो हमारी अपनी काउस थी, वी स्टार्टेड इम्पोर्टिंग फ्रॉम शिप्स, के शिप्स जो हैं वो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उससे, ऑस्ट्रेलिया से, हॉलैंड से, अमेरिका से, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज है कि वो 3 साल बाद आफ्टर लैक्टेशन वो फारिग हो जाती है, लाइक वो दे जस्ट नो वो स्लॉटर हाउस में जाती है। तो हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है वो हार्ड कोर है, वो तकरीबन 8-10 साल के बाद वो स्लॉटर हाउस में जाती है। तो हमें उसके ऊपर रिसर्च की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब लेट्स से अगर शुगर की बात करते हैं तो हम लोग उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है मोलासेस, वो आपका लोकल कैटल इंडस्ट्री में यूज होता है, और उसकी कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या कुछ ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। हम उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं मोलासेस की, जिससे हम फर्दर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फूड के अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर। इसी तरह लाइक वाइज वी हैव लाइक राइस, बासमती या सिंधी राइस जो ही है, हम उसके अंदर राइस वैक्स बना सकते हैं, द बाय प्रोडक्ट, जो वैक्सिंग बाद में हमारी कोटिंग में या वैक्सिंग में यूज होती है, फूड प्रिजर्वेशन, लाइक सिट्रस फ्रूट में हो सकती है, जो कि एक्सपोर्ट होता है हमारा, या लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी इतनी बड़ी है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास, ये भी सिर्फ हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में ये चीज़ें जो मेजर पे हैं, ग्वार गम है, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे पास मेजर यही चीज़ें हैं, इससे आगे हम लोग नहीं निकल सकते, ना निकलते ही नहीं है, क्योंकि यू नो उसमें बहुत ज़्यादा रोल आता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। तो लाइक आप लोगों को चाहिए कि आगे आएँ और इसके ऊपर काम करें। अच्छा जी, एग्रीकल्चर की हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंस क्या है? ये सबसे पहले तो हमारा जी एग्रीकल्चर, पंजाब 5 दरियाओं की ज़मीन है, पानी हमारे पास बहुत अच्छा है, और इंडिजिनस रिसोर्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, कितने मिलियन एकड़ पे हम लोग काश्त करते हैं। 19% जो है ना हम लोग जीडीपी में इसका एग्रीकल्चर का शेयर है, और तकरीबन 43% जो लेबर है वो इसमें एम्प्लॉयड है, ठीक है। और फॉर एक्सपोर्ट सच एज पाकिस्तान की ये जो एक्सपोर्ट है, इसमें कॉटन यान है या राइस है वो चाइना जाते हैं, इसकी एक अच्छी खासी किस्म की इंपॉर्टेंस है। अब इसमें अगर अपॉर्चुनिटी देखे जाए तो वी कैन एक्सपोर्ट सेमी फिनिश्ड B2B इंटरमीडिएट टू चाइना। लेट्स से अभी हम राइस वैक्स की बात कर रहे थे, तो राइस की कई चीज़ें निकलती हैं, तो हम उसको एज अ रॉ मटेरियल थोड़ी सी इसकी सेमी गुड्स में कन्वर्ट करके हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या लेट्स से अभी कॉटन यार्न की भी हमने बात की, तो कॉटन कहाँ से निकली, उसका यॉन डेवलप हुआ। चाइना क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट की भी, टेक्सटाइल में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है गालबन, तो वो लोग देखें हमारे से रॉ मटेरियल उठा रहे हैं,
यार्न की फॉर्म में, और वो आगे उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करके आगे फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रांड्स को, इंटरनेशनल ब्रांड्स को। तो ये आपने वैल्यू चेन जो है ना, आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये क्या चीज़ है, क्या बात हो रही है। इसमें कई अपॉर्चुनिटी जब हम आगे बताते हैं तो आप उसमें देखिएगा काइंडली। बी टू बी इंटरमीडिएट क्या, कि आपके क्लाइंट्स जो है ना वो 2 या 4 होते हैं। तो आप जस्ट लाइक आपके पास रूम बहुत ज़्यादा होता है, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके ऊपर डॉक्टर आफ्ताब ने गालबन को एक आध वर्कशॉप इस तरह की भी थी। तो ये बी टू बी इंटरमीडिएट आप फाइंड करें, और ये अच्छा पोटेंशियल है। इसमें हर्बल हमारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, बहुत बेशुमार चीज़ें हैं जिसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फर्दर मोर सी पैक है। अब ये देखें, सी पैक है, ओबोर है, ये चाइना को पाकिस्तान से रॉ मटेरियल चाहिए। तो गेटवे चाहिए ना मिडिल ईस्ट तक का, और फर्दर एशिया का, और वो सारे समंदर तक का। लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर पाकिस्तान को सी पैक से एडवांटेज भी होता है कि अगर हम सेमी गुड्स खाली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ना करें एग्रीकल्चर के अंदर, उसको हमें सेमी गुड्स में या गुड्स में कन्वर्ट करके चाइना के एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के साथ, एक्सपोर्टर से मिलना चाहिए, ताकि ग्लोबल वैल्यू चेंज बने। ठीक है ना। और इसके साथ टर्की के अंदर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुस्लिम कंट्री आने वाले ज़माने में, जैसे हमें नज़र आता है कि वो आफ्टर 2023 के बाद लाइक उसके लिए बहुत ज़्यादा होराइजन ओपन हो रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है हमें टर्की के साथ भी ट्रेड बढ़ाने में, बायलेटरल। और पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती, तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को और ऑब्वियसली अप्लाइड रिसर्चर्स इसके ऊपर काम करना चाहिए, कि जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पे बेशक सेमी गुड्स की फॉर्म में भी एक्सपोर्ट हो सके वहाँ पे। दे कैन बाय फ्रॉम अस दो थिंग, दो वो लोग जो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिससे हमारे पास खुबानी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की कि जो हम लोग कर सकते हैं, कम से कम स्टार्ट करना चाहिए। लाइक आप सिर्फ बेसिक रिसर्च के ऊपर या अप्लाइड रिसर्च का प्रोजेक्ट उठाएं, मैं कहता हूँ कि उसकी प्रोटोटाइज करें, जिसका कोई बेनिफिट हो, चलो कम से कम पब्लिश करके दैट फाइन। अगर नहीं भी कभी मौका मिला, लेकिन चलो आने वाले वक्त में अगर कभी काम हो गया तो लोग इसको उठा लें। ठीक है ना। इसी तरह चाइना को रॉ मटेरियल चाहिए फॉर देयर ओन प्रोसेसिंग। तो चाइना जो है वो मतलब कि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं देखता था कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया से वो आयरन ओर और जो कोल है वो बहुत बल्क में इंपोर्ट करते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर कोल है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस तो है ना, मार्केट वैल्यू है। उसकी कुछ चीज़ें इस तरह इंप्रूव करके लाइक वट एवर, तो उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे पास आयरन ओर है, या बेशुमार और चीज़ें इस तरह। अभी आप देखें कि कॉपर ओर जो है हमारा, वो सैंडेक है, उससे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ऑलरेडी चाइना में, चाइनीज़ कंपनी ही एक्सप्लॉइट कर रही है बलूचिस्तान में सैंडेक जो है। इस तरह कई चीज़ें हैं उसके अंदर। हम लोग कम से कम, आप रिसर्च कम्युनिटी कहिए कि आप इसके ऊपर कम से कम काम स्टार्ट करें। तो इसके अंदर कई अपॉर्चुनिटीज बन रही है सी पैक के अंदर। और जियो पोलिटिकल सिस्टम जो पूरी दुनिया का वो चेंज हो रहा है, पाकिस्तान का अच्छा खासा चेंज होगा। हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स में चल जा रहे हैं। हम लोग चाइना और रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं, हम वी आर लिविंग सऊदी अरेबिया और अमेरिका को। तो उससे कई अपॉर्चुनिटीज और कई प्रॉब्लम भी जनरेट हो रही हैं। तो वी नीड टू टैकल दोज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस एज वेल। और आगे आते हैं एग्रीकल्चर की। अब मैं आगे बात करूंगा जी, प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ाते हैं। देखिए, वही पहले वाली बात है कि प्रॉब्लम जो है वो इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। ठीक है। तो हमें अपनी बढ़ाने के लिए कई चीज़ें आ सकती हैं। एक्जोटिक क्रॉप्स के लिए लेट्स से मशरूम्स की बात कर लेते हैं, वी कैन गो फॉर लाइक वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है। और एक्वापॉनिक्स में हमें जाना चाहिए। फिश की अंदर एक्वापॉनिक्स में जा सकते हैं विदाउट सॉइल। हमें एक्जोटिक क्रॉप्स के अंदर, या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे ब्रोकली हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम उसको इम्प्रूव करके उसकी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी जाना है, हॉर्टिकल्चर की इंडस्ट्री, कई चीज़ें बनती हैं। फिर इसके अलावा हम लोग ड्रोन ऐड कर सकते हैं पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ वीड्स कर सकते हैं। मुझे क्योंकि इतना टेक्निकली एग्रीकल्चर में मेरा नहीं है, मैं तो जस्ट आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानी इकोनॉमी। अब इसी तरह लाइक जियोग्राफिकली सर्वे कर सकते हैं फॉर क्रॉप, जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं, कई चीज़ें हैं। एग्री यील्ड जो है हमारी लोएस्ट इन दी वर्ल्ड। लेट्स से वीट की यील्ड पाकिस्तान में तकरीबन 3.1 टन हैं पर हेक्टर, एज कम्पेयर टू 8.1 हेक्टर, 8.1 टन पर हेक्टर इन फ्रांस। हमें इसके ऊपर देखना चाहिए कि क्या सीड वो यूज़ कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ करी, असल ये काम है करने वाले। इसी तरह अगर आप कॉटन में देखें तो आप देखें कि हमें शर्म आनी चाहिए, हम लोग कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, तो हम लोग 2.5 टन कॉटन प्रोड्यूस करते हैं पर हेक्टर। और ऑन दी अदर हैंड चाइना जो है वो 4.8 टन कॉटन प्रोड्यूस करता है पर हेक्टर। दैट्स वेरी एम्बेरसिंग फॉर पाकिस्तान की, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब अगली चीज़ पे आते हैं।
अब देखिए न्यू डेवलपमेंट्स मैंने जस्ट लाइक थोड़ी सी चीज़ें देखी कि एग्रीकल्चर में हम लोग किस किस चीज़ पे काम कर सकते हैं। एंड पे एग्रीकल्चर इज नॉट लाइक बैकवर्ड थिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग, हमारे पास रॉ मटेरियल इसका इंडिजिनस रिसोर्स है हमारे पास। अच्छा जी, न्यू सीड्स डेवलपमेंट हमें करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्टली इंपोर्ट ऑल वेजी सीड्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं थाईलैंड से। वी कैन डेवलप न्यू एफिशिएंट सीड्स, बायोटेक बीटी सीड जिसको कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले सीड जिसको कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अवर मार्केट एप्लीकेशन। फॉर इंस्टेंस चाइनीज मार्केट के अंदर हॉर्टिकल्चर और राइस की अगर हम बात करें, तो चाइनीज मार्केट के अंदर हमें देखना चाहिए कौन कौन सी सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे नीड। उस तरह के हम वो राइस और वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जो कि हम वापस प्रोड्यूस बनाने के बाद वापस उनको एक्सपोर्ट कर सकें और उसको सेमी गुड्स में कन्वर्ट करें। और ऑब्वियसली इस बात में सीड्स, अफ्रीका की इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे देखना चाहिए हमें। अच्छा, न्यू पेस्टिसाइड की हमें डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। हम लोग मोस्टली जितने भी रॉ ये जो है पेस्टिसाइड के रॉ मटेरियल है वो टोटल हम लोग इंपोर्ट करते हैं और कोई काम नहीं करते। इस पे अच्छा खासा गैप है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारे पास, इतनी पेस्टिसाइड की फोर्ड भी है, ये बेशुमार कंपनी आ गई हैं और इसके सारा रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है। अच्छा, न्यू फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। स्मार्ट फर्टिलाइजर अब तो आ गए हैं, बायो फर्टिलाइजर कितने ज़्यादा आ गए, उसमें हमें देखना चाहिए किस तरह हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करें बाय अप्लाइंग डिफरेंट सोइल टेस्टिंग और अदर टेक्निक्स के। ठीक है, और एनी अदर इमर्जिंग डेवलपमेंट जो इसमें होती है वो हमें इसमें मर्ज करनी चाहिए। अच्छा, प्राइमरी रीजन जो हम इस सारी न्यू डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं वो है कि इन प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन हमारी बिल्ड हो, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर के अलावा, लाइफ स्टॉक के अलावा कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली। अच्छा, स्टेम सेल रिलेटेड R&D होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है लेकिन मार्केट वाली साइज की। मैं उसके ऊपर आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ, ट्राई करता हूँ कम से कम, मेरी क्योंकि इतनी ज़्यादा साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। वी कैन बिल्ड सम स्टेम सेल रिलेटेड मार्केटेबल टेक्नोलॉजीज। इसमें लेट्स से बायोमटेरियल्स आते हैं। ठीक है, बायोमटेरियल्स में बेशुमार चीज़ें आ रही हैं, काइटोसन है, बेशुमार चीज़ें आ रही हैं जिसके हम लेट्स से पॉलीमर बना सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की एप्लीकेशन, हम मोस्टली रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। उसमें लाइक मैं एलोवेरा की अभी हमने वो देखा कोविड-19 में कि लाइक हम लोग 300-300 रुपए की डिबियाँ हम लोग को लेके वो सारी की सारी चाइना की, वो सिंथेटिक था, वो थोड़ा सा एलोवेरा उन्होंने डाला था, ऑर्गेनिक भी नहीं था। बेशुमार चीज़ें उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर हम कॉस्मेटिक सर्जरीज आ सकती हैं जिसमें लाइक लाइक लेट्स से कई चीज़ें आ सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू फिशल सर्जरीज, और कई चीज़ों के अंदर काम हो सकता है। और मेडिकल टूरिज्म के अंदर मैंने एक पेज बनाया है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, फेसबुक का ग्रुप, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं इसके बारे में। फिर स्टेम सेल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आ सकते हैं जिसमें एंटी एजिंग आ सकती है चीज़ें, तो उसके ऊपर सप्लीमेंट है, उसमें कोई ऐसी डाइट से ऐसी चीज़ें आएँ या ऐसी इवन के ड्रग्स डेवलप हों जो कि बहुत ज़्यादा करामद है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए, तो कई चीज़ें आ सकती हैं। हेयर रीग्रोथ एप्लीकेशन आ सकती हैं, ये बहुत बड़ी मार्केट का सेगमेंट है। और लाइक क्योंकि पाकिस्तान में बाल्डनेस इज लाइक अ वेरी टिपिकल इशू, इसमें बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। एनर्जी स्टोरेज सेल्स आ सकते हैं फॉर गैजेट्स, फॉर लाइक रिमोट कंट्रोल्स के लिए, सेलफोन के लिए छोटी छोटी एप्लीकेशन आ सकती हैं। कम से कम इसमें, चलो पाकिस्तान में सेलफोन मैन्युफैक्चर नहीं होते लेकिन सेल्फ तो बनते हैं ना रिमोट कंट्रोल के, तो उसमें अगर आप कोई चीज़ इस तरह की डेवलप करते हैं, कोई बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़ी मज़े की चीज़ है, कोई भी बिजनेसमैन उसमें इंटरेस्ट लेगा, क्यों नहीं काम करेंगे लोग। बल्कि आपके अपने लिए भी एडवांटेज है, खुद अपना स्टार्ट कोई ना कोई कर सकते हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपको कुछ बताता हूँ, ये कि पाकिस्तान का ये करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है ये क्या है और इसकी क्या कंसर्न्स हैं और इसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाइज क्या चीज़ें हैं। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, ये क्या चीज़ है, इसका ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस, टिपिकली ये बनता है। ठीक है, अब आप देखें अगर इस ग्राफ को, तो यू विल सी कि तकरीबन हमारी ये ऑरेंज लाइन वाली जो इंपोर्ट है, ये ब्लू लाइन वाली जो है वो ये एक्सपोर्ट है। तो आप देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अबाउट $22 बिलियन की है 2018 में। और ये देखें कि जो हमारी इंपोर्ट है वो अबाउट $60 बिलियन से भी ऊपर है। ठीक है, तो अब देखें रिमिटेंसेस डाल के हम लोग माइनस करके, तो करंट अकाउंट का जो हमारा डेफिसिट था वो $15 बिलियन का था 2018 में। ठीक है, जब ये नई गवर्नमेंट आई इमरान खान की। अब ये असल रीज़न है हमारी इकोनॉमिक मिजरी की, कि हमें देखें कि वी हैड टू गो टू IMF फॉर बोर्बिंग, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट बिल को अपने ऑयल हमने इंपोर्ट करना होता है, हमने सब कुछ इंपोर्ट करना होता है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता है। ऑयल एंड स्टील का सेगमेंट इतना बड़ा है, कुछ 6 आई गेस $5-6 बिलियन हम इंपोर्ट कर लगाते हैं इस पर।
$2 बिलियन ये प्लास्टिक की चीज़ों पे लगाते हैं, फिर $16 बिलियन हम लोग ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट पे लगाते हैं। क्योंकि हमारा देखें कितना बड़ा गैप है, उसकी वजह से करने के लिए हमें फिर वापस देखें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। फॉरेन पॉलिसी हमारी कितनी इस पे इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट होती है, और वो हमें बाद में नजर आती है चीज़ें। अच्छा, आईएमएफ जो है ना ये जी, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ओनली लेंड करता है ये बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट पे। ये वर्ल्ड बैंक की तरह डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं देता। ये आपको हमेशा डॉलर देगा तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को ओके करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, और बड़ा बड़ा अमेरिका के ये पॉलिटिकल टूल भी है इन अ वे। अच्छा, ये जब भी हम आईएमएफ के पास जाते हैं ना, तो आईएमएफ क्या होता है कि डॉलर जो है ना स्टेबल डॉलर होता है। जैसे नून लीग ने किया, डॉलर मार्केट में फेंक दिया और स्टेबल कर दिया डॉलर को। ये जस्ट लाइक अ स्टेरॉइड फॉर बूस्टिंग इकोनॉमी, और ये बड़ा अनसस्टेनेबल है फॉर अ टाइम बीइंग। आप समझ लें कि डॉलर आप अपने मुल्क में ज़्यादा कर दें, हम हर चीज़ इंपोर्ट करने लग जाएंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है हमारी, हम लोग सारा कुछ इंपोर्ट करने लग जाएंगे चाइना से या और मुल्कों से। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। हर बंदे को थोड़े थोड़े पैसे बचने लग जाएंगे, लोग गाड़ियां लेने लग जाएंगे बैंकों पे। अब क्या होगा कि जैसे ही वो होगा, महंगाई बढ़ेगी, 2 साल बाद 3 साल बाद अनसस्टेनेबल होगा, तो वो सारा कुछ, नई गवर्नमेंट आएगी, वो सारा कुछ खराब हो जाएगा। हर गवर्नमेंट का लास्ट में, आखिरी साल में, चौथे साल में नॉर्मली ये टूल होता है कि डॉलर को किसी तरीके से ना इस तरह करो और आईएमएफ का पैसा पकड़ के ना मार्केट में लगा दो। आईएमएफ भी थोड़ा सा लूज हो चुका होता है, आपकी बन चुकी होती है उनके साथ, और आप मार्केट में लगा दो तो यू कैन लाइक आपकी इकोनॉमी चल जाती है, लाइक हिल जाती है, इसके बाद दोबारा 5 डिजिट, वो जो क्या कहते हैं 5% जीडीपी ग्रोथ रेट पे आ जाती है। लेकिन दैट्स वेरी अनसस्टेनेबल। पिछले 70 साल से यही होता आ रहा है। अच्छा, इसकी रेमेडी क्या है? इतनी बातें तो कर लेनी है, उसका फायदा क्या है, लाइक अब रेमेडी भी आना चाहिए। अच्छा, रेमेडीज इसकी ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ना वो हमारी इंक्रीज करें। ठीक है, अगर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही ना इंक्रीज कर रही, तो हम लोग फारिग हैं। उसके अंदर हमें अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, हमें वैल्यू एडिशन पे जाना है। जैसे मैंने भी आपको राइस की एग्जांपल दी, कितनी ज़्यादा चीज़ें, और हमें कोशिश करनी है कि ट्रेड सरप्लस पे जाएं, ना कि ट्रेड डेफिसिट पे। लाइक हर चीज़ हम लोग इंडिया से भी, हम हमारी ट्रेड बंद है सो कॉल, लेकिन हम दुबई के रास्ते से, यूएई के रास्ते से बहुत कुछ इंपोर्ट करें। इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव आता है ना इफेक्ट, वो एंड पे आता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की वजह से सारा हमारे मुल्क का कुछ नहीं बचता, मतलब कि सब कुछ। ये असल रीज़न है कि आप देखो कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना होने की वजह से हमारे जो टिपिकल मुल्लाज हैं, वो आप देखें कि वहाबीज़म और वो जो शिया सुन्नी का सारा, आप 80s में 90s में देखें प्रॉक्सी वार की पाकिस्तान चलता रहा है, तो आप ये देखो कि उसके अंदर पाकिस्तान सऊदीया लैंड करता रहा है और शिया को ईरान लैंड करता रहा है, लोकल जो हमारे शिया थे इधर। तो उसको देखो कितना ज़्यादा मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट हुई। तो उसके अंदर हमें काम करना चाहिए कि हम लोग इकोनॉमिकली रिलायंस हो। मतलब सॉरी, डोंट गेट ऑफेंडेड कि लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यार वहाबीज़म सही है गलत है, शिया सुन्नी सही है, ये है वो, लाइक जस्ट लाइक ए पॉलिटिकल, बट जस्ट सेइंग कि यार इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने खराब हैं। कि आपको बैकएंड नहीं बनना, आपको सेल्फ लाइंस पे जाना है, आपको अपने पाँव पे उठना है। तो हर पाकिस्तानी को इसके ऊपर सोचना चाहिए। खाली लाइक 14 अगस्त के ऊपर हमें वो पेट्रोटिक किस्म के सॉन्ग लगा के तराने लगाने का कोई फायदा नहीं। अपना हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तान का और यूएस का ट्रेड क्या है। इट्स ट्रेड होती क्या है बेसिकली, इट्स ऑलवेज बायलेटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, एंड बोथ कंट्रीज जो होती है ना, वो उनको चाहिए होता है कि हमारा ट्रेड सरप्लस हो अपनी तरफ। ठीक है, अब लेट्स से 2019 में, ये मैं थोड़ा डाटा इकट्ठा किया है, 2019 में पाकिस्तान ने $3.92 बिलियन की, पाकिस्तान ने अमेरिका को, यूएसए को एक्सपोर्ट किया, ट्रेड गुड्स जो है, सर्विसेज। और इंपोर्ट हमने तकरीबन $2.64 बिलियन की चीज़ें की वहाँ पे। और ट्रेड सरप्लस जो पाकिस्तान की तरफ है वो $1.27 बिलियन का हुआ। ठीक है, और इसके अंदर पाकिस्तान ने मोस्टली टेक्सटाइल की और राइस, सीरियल्स और ये चीज़ें एक्सपोर्ट की। और वेयर एज पाकिस्तान ने उनसे ग्रेन्स इंपोर्ट किए। फीड मिल के अंदर यूज़ होता है सोया मील, वो हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया। आयरन एंड स्टील का स्क्रैप हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, और यूएस रिमेन्ड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर, ये कम लोगों को मालूम होगा, यूएस रिमेन्ड द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी गुड्स इन 2019 एंड 20। अब आप इधर रुक जाएं और सोचें ज़रा बैठ के कि हम लोग अमेरिका के साथ झगड़ा नहीं डाल सकते बदकिस्मती से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ही अमेरिका है। हम कैसे उनके साथ फड्डा डाल लें, मुझे बताएं।
देखें वॉल्यूम कितना है, आप ये देखो कि कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर कितने हैं कि हम लोग निकल ही नहीं सकते कि हमारे तकरीबन $4 बिलियन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में जाती हैं, हम उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते। चाइना में इतनी नहीं जाती, मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे जाके। हम मजबूर हैं, तो मकसद ये है कि हमारी लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि हम ये डॉलर और ये चीज़ों से, इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करें, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर भी बेहतर हो। अच्छा जी, पाकिस्तान और चाइना की अब हम देखते हैं ट्रेड क्या है। पाकिस्तान तकरीबन जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया, ये गालबन ये भी 19 का एक डेटा है। पाकिस्तान ने तकरीबन देखें कि हमने इंपोर्ट किया है, ये पाकिस्तान का एफबीआर कहता है कि तकरीबन हमने $10 बिलियन की, $10 बिलियन की हमने चाइना से इंपोर्ट की। और पाकिस्तान ने जो चाइना को एक्सपोर्ट की वो जस्ट लाइक $2 बिलियन, क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है अभी देने के लिए चाइना को। वी नीड प्रोडक्ट्स, वी नीड इनोवेशन, लॉट ऑफ अदर स्टफ। अब आप देखें इसके अंदर के $10 अरब की अगर हमने चीज़ें इंपोर्ट की हैं, तो क्या उसमें $2 अरब की चीज़ें हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते लोग चाइना से? जो चाइना से हम मंगवाते हैं लोकल नहीं कर सकते, तो हमारे टेक्नोलॉजी के इश्यूज हैं। और भी इश्यूज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इशू है, टेक्नोलॉजी नहीं है। और उसमें आप देखें कि ह्यूज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होने वाली है, एक्सपोर्ट का अच्छा खासा गैप है। वही जो आपसे पहले बात हो रही थी कि वैल्यू चेन्स बन सकती हैं अगर हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स भी बनाएं पाकिस्तानी एग्रीकल्चर से। अब चाइना लेबर जो है इज बीइंग एक्सपेंसिव, कंपैरेटिवली होती जा रही है। वियतनाम इसमें बहुत आगे आता जा रहा है, और सारी वो शिफ्टिंग जो वियतनाम में करेंगे वहाँ पर स्टेबिलिटी है, उनके अंदर ये करेंसी के डॉलर के ये वाले इशू नहीं है। और कंपैरेटिवली सार्क नेशन के अंदर भी चाइना की लेबर अच्छी खासी महंगी हो रही है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स के अंदर हम जा सकते हैं। चाइना रिक्वायर्स चीप रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड, वही बात है जो आपसे पहले हो रही है। अच्छा जी, यूएस चाइना की वो जो ट्रेड वॉर है, ये मैं अब आपको बताता हूँ कि ये असल चल क्यों रही है। अब आप ये देखें कि यूएस का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, यूएस की तरफ जो ट्रेड डेफिसिट है, $419 बिलियन का है 2018 में। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि तकरीबन, ये देखें कि जो इंपोर्ट किए हैं अमेरिका ने वो तकरीबन 400 500 सॉरी 500 प्लस बिलियन डॉलर की चाइना से इंपोर्ट की हैं यूएस ने। और यूएस ने जो एक्सपोर्ट की है प्रोडक्ट, वो लाइक उसकी कुछ भी नहीं है, लाइक लाइक अबाउट 110 बिलियन डॉलर की है। ठीक है, तो लाइक इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, और इतनी पूरी दुनिया में देखें जियो पोलिटिकली चेंज हो रहा है, इतना बड़ा ये टूल है ट्रेड वॉर और ये ट्रेड डेफिसिट, कि इसकी वजह से देखें जंगें होने लगी हैं दुनिया में। तो अब आप ये देखो कि ये कितना बड़ा, कितनी ज़्यादा वक्त की ये डायर नीड है, कि नीड ऑफ एन आवर कि हम इसके ऊपर काम करें, और ये ट्रेड के ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ों को लेके चलें और होलिस्टिकली लेके चलें। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो सेठ कल्चर है वो बड़ा ना अजीब सा लाइक है। मैं तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ, जिन लोगों ने इसमें अप्लाइड रिसर्च में आगे कुछ कारोबार वगैरह करना है या इंडस्ट्री में भी जाना है। पाकिस्तानी बिजनेसेस जो है वो मोस्टली फैमिली ओन्ड है। ठीक है, वो हायरार्की बनी होती है वो सारी। अच्छा, इम्पोर्ट्स रेडीमेड टेक्नोलॉजी बाय अंडरस्टैंडिंग डिमांड इन पाकिस्तानी मार्केट। देखते हैं इधर का रेट, देखता है कि यार पाकिस्तान में डिमांड क्रिएट हुई, वहाँ से जाओ यार, वहाँ से उठाओ एक मशीन उठाओ, और वो उनके मुताबिक ही वो प्रोडक्ट उठाएगा, बल्कि उसका कभी कोशिश करेगा रॉ मटेरियल भी बाहर से आए। तो कहेगा नहीं यार, यहाँ से रॉ मटेरियल भी लेंगे, वो उसके चलाने में पड़ेगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी भी अपने रॉ मटेरियल पर डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों के मुताबिक ना देखना चाहिए। R&D बिल्कुल नहीं है हमारे में। रेंट सीकर हमारा जो सेठ कल्चर है, या कारोबारी जो बंदा है, टिपिकली जो बिजनेसमैन है पाकिस्तानी सेठ, वो रेंट सीकर है प्योर, इनोवेटिव बिल्कुल नहीं है, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट उसके दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी ये हो रही है कि उनके जो बच्चे बच्चे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, वो थोड़े से बाहर से पढ़े लिखे आ रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं R&D में। दे नीड सम सिस्टम कि यार कोई अप्लाइड रिसर्चर के अंदर भी कोई बंदे का पुत्र हमें मिल जाए, तो हम उसको कम अज कम चलो रख लें, और अच्छी सैलरीज के ऊपर हमारे साथ वो काम करें। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर अप्लाइड रिसर्चर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, जैसे बताया आपको कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हम लोग तकरीबन 42 लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल साइज। इसका बेनिफिट्स ये हो सकते हैं, ये जो आपसे पहले भी सारी बातें हो रही थी कि लोकल टेक्नोलॉजी हो, उसकी वैल्यूडेशन होगी। ठीक है, लेस डिपेंडेंसी होगी इम्पोर्ट्स के ऊपर, हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो सेव हो जाएंगे, लेस रिलायंस होगा हमारा IMF के ऊपर, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाएगा, महंगाई कम होती जाएगी, GDP ग्रोथ रेट बढ़ेगा, लोग गाड़ियाँ लेंगे, घर लेंगे, खुशहाल हो जाएंगे लोग। इसमें बहुत बड़ा आपकी भी ज़रूरत है, ये जो रिसर्च कम्युनिटी की।
अब बिजनेस आइडिया और गैप के ऊपर बात करते हैं, जो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि थोड़े से चंद मैं जिक्र करता हूँ, आगे आप इसके ऊपर खुद काम करें। बायोफ्यूल पैलेट्स के अंदर हम बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास देखें एग्रीकल्चर का बड़ा हुआ वीट स्ट्रॉ या राइस हस्क है, वीट हस्क है, सॉ डस्ट है जिसको बूरा कहते हैं लकड़ी का जो बच जाता है, बाइंडर्स हैं इसमें, गम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास लोकली अवेलेबल है। पैलेटाइजर मशीन भी बन रही है मैंने सुना है लाहौर में, और इसके अंदर काम हो सकता है, ये चल सकती है यहाँ पे, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि अल्टरनेटिव है एलपीजी का, गैस का, टिम्बर का, जो लकड़ी इंडस्ट्री में चलती है। इसकी अब चलने के लिए इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि देखें आपके कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे कपड़ों की इंडस्ट्री होती है जिसमें लाइक डाइंग करनी होती है, उन्होंने प्रिंटिंग करनी होती है, वो सारी कॉटेज इंडस्ट्री जितनी होती है सारी लग इस पे चलती है, वुड पे चलती है, लकड़ी पे चलती है, एलपीजी पे चलती है इवन के, ताकि उनको बिजली और वो उनको जो स्टीम चाहिए होती है या वो जो चाहिए होती है बॉयलर चाहिए होता है, वो सारा इस पे चलाते हैं। रेस्टोरेंट और मार्केट के अंदर कुकिंग सारी हो सकती है इसके साथ। गैस देखें ना सर्दियों में कितनी ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव इस पे काम हो सकता है। इसमें कुछ लोग ऑलरेडी आ भी गए इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरह ये एक आइडिया था, इसमें मैं कुछ थोड़ा सा अगर मुझसे कोई पूछना चाहे मैं इसमें कुछ लोगों को बता भी सकता हूँ। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं कॉर्न स्टीव लिकर, इसके ऊपर रिसर्च होने वाली है, आप काम करें। ये सीएसपी जो है ये एक बाय प्रोडक्ट है, कॉर्न वेट मिलिंग का प्रोसेस है। पाकिस्तान में कि 4-5 इसकी फैक्ट्रियाँ हैं, मुझे मालूम है, अगर किसी को प्राइवेटली मुझसे पूछना चाहे तो मैं बता दूंगा। और ये ऑलरेडी प्रोडक्ट जो ये बीइंग ड्रेन हो रही है, लाइक वेस्ट हो रही है, गटर में जाती है, और इसके अंदर गालबन अच्छा खासा किस्म का जो है ना वो ये अमाइनो एसिड और वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसका इंडस्ट्री में भी या वैसे कोई यूज़ नहीं है। मैंने भारत में देखा है कि इसका इसके ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है। इसको वो लोग यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको फिश फीड के अंदर यूज़ करते हैं, फिश के अंदर, कैटल में, पोल्ट्री फीड के अंदर यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिसर्च चाहिए कि जो इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट को एक प्रोडक्ट बना लें। देखिए कौन सी लिकर है, ये बाकायदा पोल्ट्री में, कैटल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है भारत में। ये मैंने आपको जो एक तस्वीर लगाई हुई है ये वाली, ये अच्छा खासा काम हो सकता है इसमें, किसी को चाहिए तो वो बताए मुझे। नॉन वूवन बैग्स, मैंने आपसे जैसे पहले भी बताया कि 2011 में हमने लॉन्च किया था, एग्जिट कर गए थे, इसमें हमने भी अर्न गुड मनी। तो मैं इसको बिजनेस एक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाह रहा हूँ कि पॉइनियर होने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। तो आइडेंटिफाई आप गैप करें इसी तरह ये प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आप इसके अंदर एंटर हो। इसके अंदर भी आप बायोप्लास्टिक के बैग्स ला सकते हैं जो कि बायोडिग्रेड हो जाए सिंपली, यही इसी फैब्रिक के अंदर, इसी मटेरियल के अंदर। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गैप है, डिमांड है। और आगे आप दुनिया बात करिए सर्कुलर इकोनॉमी की, कि वही प्रोडक्ट बार बार रिसाइकल होके अप साइकिलिंग हो, डिफरेंट चीज़ें आए, और वो फील्ड में ही वो जो उसकी वेस्ट कम से कम हो, एनवायरनमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट हो। तो आप इसमें भी रिसर्च का देखें। बायोप्लास्टिक रिसर्च, इसमें अच्छा खासा काम हो सकता है जी। इसके अंदर अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो इट्स नॉट रिसाइकलेबल, सबसे बड़ा जो इसका एक है, ये जस्ट लाइक वेस्ट हो उसमें एनवायरनमेंट में चली गई। इसका फीड स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जी, कॉर्न मेज। वी आर लाइक आई गेस फोर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेज में, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। अदर सोर्सेज से हम लोग कर सकते हैं, लाइक श्रिम्प सेल से, श्रिम्प जो होते हैं श्रिम्प, उसके हम शेल से कर सकते हैं, काइटोसन। फिर उसके अलावा ऑन सेम प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग मशीन के ऊपर ये कैरी बैग जो बनाते हैं हम लोग, उसमें ये यूज़ हो सकती है, वही यही बायोप्लास्टिक, ब्लेंड नहीं, लाइक प्रॉपर बायोप्लास्टिक। मार्केट साइज इसका आप देखें कितना बड़ा है, कि लाइक पाकिस्तान तकरीबन 3 लाख टन पोलीएथिलीन हम लोग मिडल ईस्ट से इम्पोर्ट करते हैं हर साल। तो कितना बड़ा एक सेगमेंट है। और ये लाइक आप 5,000 टन की भी लगा लो यार, ख़त्म ही नहीं होता यार ये। इसका अच्छा खासा बड़ा है, और इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करो, इसके एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और बायोप्लास्टिक एक बड़ी इमर्जिंग किस्म की फील्ड है। इसके अंदर जो चैलेंज है वो है कि आपने कॉस्ट आपने कैसे कम करनी है, और इसी मशीनरी पे जो प्रेजेंटली लोगों के पास मशीनरी है इसी पे चलाना है। उसमें अगर किसी को मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल, लेकिन उसके पास के लैब के इक्विपमेंट और प्रॉपर लैब के उसके फैकल्टी के अंदर वो इक्विपमेंट वगैरह हों, तो आई कैन बी लाइक असिस्टेंट इन दिस रिगार्ड। मतलब कि मैं आपको इसमें गाइड भी कर सकता हूँ, या मैं खुद भी स्टार्ट कर सकता हूँ आपके साथ। अच्छा, plastic eating bacteria. Much applied research is going on in plastic eating bacteria. Like I had read in like newspaper few years ago. अर्बन इसमें अच्छा खासा काम हो सकता है कि एक शॉपिंग बैग है, अब वो लाइक गार्बेज पे पड़ा हुआ है, लाइक वो ग्रेजुअली इसके ऊपर कोई चीज़ डालें तो वो ख़त्म हो जाती है, आपका बैक्टीरिया उसको ईट कर जाता है। अर्बन वेस्ट हर शहर में प्रॉब्लम है। मैंने लाहौर में देखा है कि वहाँ पे एक बड़ी कंपनी है सैफ ग्रुप की, लाहौर कंपोस्ट के नाम पे, महमूद बूटी पे, रिंग रोड पे है।
बहुत बड़ी ये कंपनी है मोबिलिंक। एक्चुअली ये जो पाकिस्तान में मोबिलिंक है, इसकी पेरेंट कंपनी है सैप ग्रुप। उनका ये प्रोजेक्ट है, ये इन्होंने गालबन कोई अमेरिका या यूएस के साथ मिलकर, अमेरिका या यूरोप यूनियन के साथ मिलकर गया था पाकिस्तान में 10-12 साल पहले। सक्सेसफुली चल रहा है। पूरे लाहौर की ये वेस्ट इकट्ठी करते हैं, उसको बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो इनको भी कैरी बैग्स का बहुत बड़ा इशू आता है कि ये इसको डिजॉल्व नहीं कर पाते। तो आप इसके ऊपर काम करें। और छोटे शहरों में हर वक्त ये अब देखें ना, गवर्नमेंट जब चेंज, लोकल गवर्नमेंट आएंगी आगे जाके, तो लाहौर कंपोस्ट की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट हर शहर में आएंगे। तो हर एक की वेस्ट है, तो उसके अंदर ये आपका प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो फ्यू प्लास्टिक आर नॉट रिसाइकलेबल सच एज एलडी, लो लीनियर लो डेंसिटी, ये जो होती है पोलियथलीन, इसके कैरी बैग ट्रैश में ही जाते हैं। ये वेस्ट है, वही पाकिस्तान में फ्लड का, गटरों का मसला बनता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी ये प्रोजेक्ट है, ये अच्छा एक पोटेंशियल बिजनेस कॉन्सेप्ट है इस पर अगर आप प्रॉपर वाला काम करो और इंडिजिनस रिसोर्स यूज करके। अच्छा जी, सॉल्ट। पाकिस्तान के पास आपको पता है सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट, हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट माइन है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान जो है ख्योरा वाली जो माइन है, सर्च नीडेड है इसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में। अभी तक तो हम जस्ट लाइक रॉ मटेरियल ही बेच रहे हैं। इसकी इंडस्ट्री में अच्छी खासी यूजेबिलिटी है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आईसीआई पाकिस्तान, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने की पाकिस्तान में चली, ये पाकिस्तान के अंदर आ गई थी, तो लाइक दे स्टार्टेड वर्किंग 1947। अब ये सोडा ऐश बनाते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट आई गेस इसको कहते हैं। इन्होंने 1944 में स्टार्ट किया था। और ये इंपीरियल केमिकल कंपनी को कहते हैं, इंपीरियल केमिकल कंपनी के नाम पे ये आता है। ब्रिटिश ब्रिटिश यूके की कंपनी है। और आईसीआई और ब्रिटिश पीपल ने एक्चुअली आइडेंटिफाइड वैल्यू, क्योंकि उन्होंने कहा ये लोकल इंडिजिनस रिसोर्स जो है ये अवेलेबल है। और वो गालबन मेरा ख्याल है कि मिलियन टन ये लोग बनाते हैं इससे सोडा ऐश। तो बात ये कि इससे कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। आपको लगता है आप उसमें भी आओ, ताकि वो हम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकें, लोकल इंडस्ट्री लगे, जॉब क्रिएशन हो, कई बेनिफिट्स हैं, हमारी इंपोर्ट कम हो। इससे छोटी चीज देखो क्या प्रोडक्ट्स ऐसी बन सकती हैं जो इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन हो। राइस वैक्स, जो हम पहले अभी बात कर रहे थे, राइस वैक्स और राइस फ्रूट कोटिंग के ऊपर। अब फ्रूट की प्रिजर्वेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको फ्रूट वैक्स यूज होती है। वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, आई गेस नेदरलैंड से इम्पोर्ट करते हैं, हॉलैंड से, इन मुल्कों से। और बल्क फ्रूट वैक्स इज बीइंग इम्पोर्टेड, चाइना से भी करते हैं। इस गालबन इंसेक्टिसाइड बेस्ड है वो, जो सिट्रस फ्रूट पे लगती है, जो एक्सपोर्ट होता है सरगोदा से किन्नू। अब राइस वैक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड, इसकी एप्लीकेशन कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। काइटोसन कैन बी प्रोड्यूस, काइटोसन एक अच्छा खासा बायोपॉलीमर है, कैन बी प्रोड्यूस लोकली थ्रू शिम्स और फंगी रूट्स के जरिए, मशरूम्स के जरिए ये हो सकता है। इट कैन बी यूज फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन। इसमें रिसर्च नीडेड है, मुझे जहाँ तक पता था मैंने अपना फर्ज अदा किया और बता दिया आपको। अच्छा जी, अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर इन दी वेस्ट, आई गेस। ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है वो हर साल वेल बींग पे लगाता है, और उसके अंदर अच्छी खासी इंडस्ट्री ये अल्टरनेटिव मेडिसिन की आती है। जब मतलब कि सब लोग डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो एंड पे जो चीज़ बचती है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन आती है कि चलो यार ये खा लें तो ये बच जाए शायद। अब फाइन, इसमें आप हर्ब फाइन कर लें, जड़ी बूटियाँ, दैट कुड बी यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर वैरायटी ऑफ जो है डिजीज स्पीशीज। आप इस तरह ले लें। मशरूम्स, मुझे लगता है कि इसमें जो वाइल्ड या कुछ इस तरह के मशरूम्स हैं, ये सीम्स प्रॉमिसिंग मुझे लगते हैं। इसमें आप देखो कि इसमें क्या काम हो सकता है, जो हर्ब्स के अंदर, न्यूट्रासूटिकल के अंदर इन पर्टिकुलरली, जिसकी डेवलपमेंट हो और जिसकी कोई यूजेबिलिटी हो। अच्छा, एक्सपोजर के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ यूज़ करो B2B मार्केट alibaba.com। उसमें कोटेशन लो, इंटरेक्ट करो बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ। आई गेस आपका वो प्रोफाइल बनाने देंगे, लेकिन कम अज़ कम इस तरह का और प्लेटफॉर्म देख लो, आपको एक्सपोजर इंक्रीज होगा, बड़ा बेनिफिशियल है ये। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ज़रूर कहूँगा यार कि आप लोग ना रीडिंग करो। वो तो ओवरऑल सबको करनी चाहिए। तो रीडिंग में अगर आपको इस फील्ड में आप आना चाहते हो, तो एक बंदे को आप पकड़ो, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में कमाल किस्म की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमी और हर चीज़ को लेके। ये बंदा सेल्फ मेड बिलियनर है पाकिस्तान में। ये जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, मैरियट होटल और इसकी ओरियन पेट्रोलियम के नाम, बहुत बड़ी कंपनी है, एवरीबडी नो हिम, लाइक सदरुद्दीन हाशवानी। ही फ्रॉम कराची बट ही रिसाइड्स इन इस्लामाबाद। इसकी बुक है लाइक जिसके अंदर ये बात करता है कि डायनामिक्स की, पाकिस्तान की बात करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की, हाउ ही स्टार्टेड 19 आई गेस 60s में, इसने स्टार्ट 60s में स्टार्ट किया। पहले ये कॉटन किंग बनता है, ही इज़ लाइक अ ट्रेडर, लेकिन अब तो वो प्रोडक्शन और वो, बल्कि आप इसको बिजनेस एक्यूमन पॉलिटिकल इकोनॉमी का कहाँ। और इसने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, कोई इसका बड़ा कारोबार नहीं था, लेकिन
सस्टेन भी किया, इवॉल्व भी किया और बहुत बड़ा एम्पायर बना गया। तो हमें इस बंदे, और नीट एंड क्लीन बंदा है, कोई लाइक वो झूठ और जिसको कहते हैं ना उस तरह की कोई नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, अपेरेंटली ही इज अ बिजनेसमैन। अच्छा जी, ये मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये फेसबुक का एक मैंने ग्रुप बनाया है, कारोबार इंडस्ट्री एकेडेमिया लैब के नाम पे। ये मैंने ग्रुप बनाया, वी हैव इनिशिएटेड दिस ग्रुप फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड इसके अंदर आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग वॉलंटियरिज्म में इसके अंदर अपनी कैपेसिटी के अंदर आए फॉर पाकिस्तान। कार्मिक कॉन्सेप्ट भी है यूनिवर्स का, इस्लामिकली भी ले लें अगर उसको, दैट वट यू गिव टू द यूनिवर्स, और जो आप देंगे वही रिटर्न आपके पास वापस आएगा मैनी फोल्ड होके। तो डू गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल। अगर आप पाकिस्तान से अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो वो पाकिस्तान भी रिटर्न में आपको मसला ही डेवलप होगा। तो डू गुड फॉर पाकिस्तान, फॉर कम्युनिटी, फॉर योर सराउंडिंग पीपल वगैरह वगैरह। यू विल गेट अल्लाह हेल्प, मुझे इस पे बिलीव है, इन योर ओन इंडिविजुअल गोल फ्रॉम अल्लाह। तो अगर आप इसके अंदर अप्लाइड रिसर्च या बेसिक रिसर्च में भी हैं तो आपको कम से कम इसके अंदर आके काम करना चाहिए वॉलंटरी। जैसे आपके प्रोजेक्ट के अंदर एम फिल में या बैचलर्स में 3-4 प्रोजेक्ट आते हैं, स्टैम के, साइंसिस के, केमिस्ट्री के, तो आप एक प्रोजेक्ट उठा लो कि एक प्रोजेक्ट उठा के मैंने यार वॉलंटरी बेसिस पे मैंने एक प्रोजेक्ट उठा के ये मैंने लगाना है, पब्लिश भी करवाना है इवन कि अगर पॉसिबल हो। तो चलो वक्त आने पे कभी ना कभी हम लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो अब आपको भी आपका ही प्रोजेक्ट क्लिक कर सकता है, यू नो। कम से कम आपको इसके ऊपर आना चाहिए। हमने वहाँ पे तकरीबन कोई 42 प्रोजेक्ट दिए हमें, और बल्कि इससे भी ज़्यादा अब तो हो गए। तो उसके अंदर अब आप देखोगे कि कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस भी, और कई लोग उसमें जो बिजनेसमैन है अब डिफरेंट फील्ड में वो देखते हैं, उनको फ़ायदा होता है उसका, दे टेक अप, और उसमें जॉब्स के भी बड़े ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि लेट्स से कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो कहते हैं यार ये मेरा एक बाय प्रोडक्ट है, चलो लेट्स से अभी ये कौन सी ब्रेकर की बात करें, इसमें आप कोई प्रोजेक्ट निकाल लेते हो, मैं आपको फैक्ट्री वाले बंदे से इंट्रोड्यूस करूँ जो आपको प्रॉब्लली हायर कर ले, आप उसको रिसर्च करके दे देते हो, वो आपकी किसी प्रोडक्ट को लेके वो कहते हैं यार मेरी एक नई प्रोडक्ट बन गई है। तो इसमें कई चीज़ें आती हैं और आपको इंटरेक्ट करना चाहिए और कन्वर्जेशन होनी चाहिए हमारी। अच्छा जी, ये कंट्रीब्यूशन मैंने तकरीबन आपको बता रहा था कि 45 हाई पोटेंशियल किस्म के इसमें आइडियाज़ मैंने दिए हैं, और काफ़ी लोग हैं, बल्कि कुछ टीम में लोग भी हैं, मेरे पास 3-4 लोग भी हैं इसमें, कुछ रिसर्चर्स भी हैं, और डॉक्टर आफ्ताब भी हैं, और बेशुमार लोग हैं। और इसमें हम ज़्यादा काम कर रहे हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पे, एज एन अप्लाइड रिसर्च। और मैं तो खैर उसमें काम कर रहा हूँ, उसमें आप कर सकते हो अप्लाइड रिसर्च के तौर पे। मैं तो एज अ जस्ट लाइक मिडिल मैन कह लो आप, लाइक आर्बिट्रेज कर रहा हूँ बेसिकली। तो आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, एज एन अप्लाइड रिसर्चर काम कर सकते हो। वर्क ऑन अप्लाइड रिसर्च आइडियाज रिलेटेड टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री एज एन वॉलंटियर, ठीक है ना। एडवाइज आप कर सकते हो लोकल इंडस्ट्री को, बात कर सकते हो, लिख सकते हो, वहाँ पे आप अपने मैगजीन टाइप का बन सकता है सिस्टम, हम आपको सपोर्ट करेंगे बकायदा। फिर आप मेंटोर बन सकते हो, बल्कि हमारे पास वहाँ पे मेंटोर हैं, मैं खुद एक मेंटोर हूँ, मैं आपको मेंटोर कर सकता हूँ, आप हमारी टीम में आ सकते हो, कोई आना चाहता है अगर स्टूडेंट कि अप्लाइड रिसर्च के अंदर कोई कंटेंट दे दिया, कोई कंटेंट बिल्डिंग कर दी और लोगों को जिससे फ़ायदा हो जाए, ये सबका जारी है, तो आप इसके ऊपर आओ। बाकी आप साथ ये प्रमोट करो हमारे इस ग्रुप को, ये जो मैं पीछे बता रहा था आपको, ये फेसबुक का जो ग्रुप, इसको आप, और ये बना हुआ है इसका कारोबार.org.p के ग्रुप, फेसबुक ग्रुप कारोबार.org, आप सिंपल अगर यही लिख दोगे कारोबार, ये ब्रैकेट इंडस्ट्री एकेडमिया लैब, तो ये तब भी आ जाएगा। प्रमोट कर सकते हो अपने सर्कल में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने लोगों के साथ, जिससे कि हमारे पास हाई कैलिबर के लोग आएँ और हमारी टीम में ऐड हों, और वॉलंटियर्स आएँ जो कि टीम में ऐड होकर काम करें फॉर अपने लिए और फॉर पाकिस्तान। मेरा इसमें पर्सनल कोई एडवांटेज नहीं है। अच्छा जी, फाइनली मैं कह रहा था जी, मैं मेंटोरशिप के लिए अवेलेबल हूँ। आई एम अवेलेबल फॉर बिजनेस मेंटोरशिप टू स्टूडेंट्स, अप्लाइड रिसर्चर्स और कोई एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है उनके लिए। मेरा ईमेल ये लिखा हुआ है salman@thebackmaker.com, ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है। लिंक्डइन पे मैं हूँ जी सलमान ए डॉट शेख, फेसबुक पे भी हूँ सलमान ए डॉट शेख, तो एनी बडी वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, आई एम वेलकम। और पर्सनल मुझसे कोई करना चाहे, कोई आना चाहे, मुझसे बात करे, मुझे लगे तो मैं लाइक आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये लाइक फ़ोन नंबर, और मुझसे वो 1-to-1 भी बात कर सकते हैं इन माई ओन कैपेसिटी। आई विल ट्राई टू हेल्प दैम इन माई कैपेसिटी, नॉट रिलेटेड टू फंडिंग, बट जिस मेरी कैपेसिटी में भी हुआ आई विल ट्राई टू फाइंड सम वे। एंड थैंक यू सो मच, इट्स ऑल एंड। और बहुत शुक्रिया जी आपका, ये मेरी वर्कशॉप अटेंड करने का, ये पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। एंड आई विश यू रियली गुड लक। और इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, चलो उसके अंदर हम काम करते हैं। अब डॉक्टर आफ्ताब के साथ जब ये प्रीमियर हो जाता है तो फिर हम इसके ऊपर लाइव एक सेशन रखेंगे,
वो डॉक्टर आफ्ताब और नेज और आर एस से वो आपसे इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड अप्लाइड रिसर्चर। थैंक यू। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।